Alright, everyone. So here we continue our discussion with the next subtopic, kind of, because I have shown you this list earlier. So this list, and I have told you that I will be making the videos GS wise also, and simultaneously I will be taking up the other topics also, so that the audiences who need any such kind of video, their demands and needs are catered here. ठीक है, तो एक GS1 पे आर्ट एंड कल्चर की वीडियो बन चुकी है, सो प्लीज़ डू चेक दैट. यू विल सी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू डू दिस एक्सरसाइज just for a video. It would be really helpful if you watch this. That's the breaking of the topic related to the syllabus wise part. ठीक है, GS related, all the other videos that I would be making here, just as a samples, I will let you know. But now let's talk about another very important part which many of you have asked me about. I have received these emails. Of course they are very personal to share here, so I will not do that, breaching someone's privacy. But one thing that I have done here is to attach a screenshot, क्योंकि ये किसी बहुत ही करीबी के पर्सनल उसके चैट के कॉन्वर्सेशन है. ऑफकोर्स आई एम नॉट रिवीलिंग द आइडेंटिटी, सो इट्स नॉट द ब्रीचिंग ऑफ द privacy again. The reason of showing this is, and I'll get back to this, but this is related to the mental health issue and what kind of challenges are people facing. तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको सिर्फ उस चैट से दिया है कि पर्सनली भी चीज़ें किस तरह से लोगों के साथ हो रही हैं. Other examples I will not be giving because they are the subscribers messages to me, the people who are attached to me through YouTube, and that would not be right on my part. ठीक है, चलो अब हम इस टॉपिक को डील करते हैं. एंड हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ इन अ ब्रॉडर मैनर बिकॉज इट विल अगैन, फर्स्टली आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट बट आई एम अ सफरर. ठीक है, so I do have the validity to talk about it but not in the professional terms because again I am not a professional. ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ब्रॉडर टॉपिक होता है and to talk about it at length will take a lot of time, and not just time, it will also take a whole new series. So based on your response, maybe I can think about talking about it in detail, but for the time being I am only associating this part of mental health with the preparation, primarily the preparation of UPSC examination, UPSC civil services examination, but that could go ahead with any other kind of examination also. ठीक है, चलो सबसे पहले the question that I would try to address and understand is, does this issue of mental health matter? क्या ये जो मुद्दा जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, क्या ये मैटर करता है? Does this issue matter? The next question is, if it does, how does it matter? Now I think in response to this particular question, it should be absolutely very clear to all of you that yes, it does matter. इसमें तो कोई दो राय ही नहीं होनी चाहिए. In fact, in the present scenario, the kind of situations that people are going through, what they are facing, it actually is the most important thing. It has become the most important thing. So there is no single thought on the point that does it matter or not. ठीक है, चलो यहाँ तक तो ठीक है. मूविंग अहेड विथ, क्या ये मैटर जो कर रहा है किस तरीके से करता है, इस पे अगर हम बात करते हैं. अब देखना शुरू करो, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट एनी एग्जामिनेशन एंड प्राइमरली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, द जर्नी इज़ वेरी लॉन्ग इन इट्सेल्फ. तो लेट्स से इफ समबडी, let's say the minimum data that we can have, the minimum possible time anyone would be giving to this examination process, which in reality actually is not possible. ठीक है, मतलब बहुत ही रेयर कोई केसेस होते होंगे वहीं ऐसा होता होगा, but let's assume. So let's talk about the civil services exam. So let's say कि somebody is clearing in first attempt. There are many who have cleared in first attempt, but mostly they have done the preparation for longer than 1 year. But let's assume somebody has cleared in first attempt with just 1 year of preparation. ठीक है, मान लो. अब इस केस में क्या होगा, तो भी the minimum time that the person would have taken would be 2 years. Why? Because 1 year of preparation and 1 year of the exam process, the whole process takes around almost a year from the prelims date to the next year's result time. ठीक है, ऑलमोस्ट इतना लग ही जाता है. तो अब आप ये समझो कि मिनिमम भी में अगर हम बात करते हैं 2 साल का टाइम लगता है, विच इज़ अगेन अ वेरी लॉन्ग जर्नी. तो जितना ज़्यादा इस जर्नी में टाइम लगता है, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सस्टेन. इट इज़ वेरी ईजी टू स्टार्ट. ठीक है, स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा लोड या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है,
क्योंकि हम कुछ नया शुरू कर रहे होते हैं, इट्स वेरी एक्साइटिंग, वी गेट टू लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स, बहुत से फैक्टर्स होते हैं. बट टू सस्टेन फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम, और ये दो तो मैंने मिनिमम बोला, इट कैन गो ऑन फॉर 9, 10, 11 ईयर्स ऑल्सो फॉर सेवरल पीपल. ठीक है, एंड इट हैज़ बीन द केस. सो ऐसा कोई मैंने यूनिक चीज़ नहीं बता दी यहाँ पे. नाउ इन दैट सिचुएशन, जब ये मैटर करता है तो ये किस तरीके से मैटर करने लग जाता है. इट स्टार्ट्स नॉट ओनली इम्पैक्टिंग आवर मेंटल हेल्थ बट इन रिटर्न ऑल्सो आवर इमोशनल वेलबींग, which becomes very very, I would say, in a vulnerable state. Definitely when mental and emotional well-being is not good, it results in the physical harm also. ठीक है, उसके अलावा जब हम बात करते हैं then it is also somehow impacting your financial status. आप खुद अर्न कर रहे हो या आप पेरेंट्स के हेल्प से हो या आप किसी सिबलिंग, बड़े सिबलिंग के हेल्प से हो, वट एवर इज़ द केस, बट द फाइनेंशियल स्टेटस स्टार्ट टू गेट हैम्पर्ड. वाई? बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मैनेज थिंग्स. आप मैनेज नहीं कर पा रहे होते चीज़ों को. वाई? बिकॉज आप मेंटली स्टेबल नहीं हो पाते हो. मेंटल हेल्थ पे सबसे पहले तो बात करना कोई टैबू नहीं है. ये देखो, समझो, यहाँ मैंने लिखा भी है. ठीक है, प्रोफेशनल हेल्प के बारे में आई टॉक अबाउट दिस. इस पे बात करना ज़रूरत है, नीड है. ठीक है, तो इस चीज़ को सबसे पहले तो समझो कि ये सिर्फ इसलिए नहीं मैटर करता है कि दिस विल ओनली इम्पैक्ट फॉर दैट ड्यूरेशन, जितने टाइम में आप प्रिपेयर कर रहे होगे या अटेम्प्ट दे रहे होगे. It will impact beyond that also. Why? Because you will be in a loop, and to get out of it after a very long time becomes difficult. But it's not impossible. It definitely is possible with right approach, with right guidance, with right support, with right help, and mostly the willpower. And उससे भी ज़्यादा important एक चीज़ होता है acknowledgement. वो क्या होता है उस पर हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे. When I talk about what can we do about it or what can be done about it. ठीक है, चलो. So does it matter? Absolutely, like anything. How does it matter? Because it impacts every aspect of our life. It then in when your mental and emotional health suffers, physical and financial health suffers, your spiritual health also starts to suffer, and your relationships start to go in a vulnerable state, be it with parents, be it with siblings, be it with friends, be it with partners, be it with anybody. In fact, professional relation also at times might suffer because personally you're not in a great state. तो इसका इम्पैक्ट जो है बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है और बहुत ही आई वुड से वाइडर एरिया को कवर करता है. इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड और रेस्ट्रिक्टेड टू योर प्रेपरेशन. So I have addressed these two parts in a very short, because again I can make a very lengthy video on this, but that will not serve the purpose. So here I'm just addressing on each of these key aspects. If you would genuinely give me a good feedback, I would get the response, and I would see that people are willing for me to make more videos on it. Then I will be proceeding with it. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो समझना है, देन हाउ टू अंडरस्टैंड अबाउट इट. फर्स्टली, हाउ डू वी अंडरस्टैंड अबाउट कि हमारे साथ कोई इशू हो रही है ड्यूरिंग द प्रेपरेशन टाइम. सो द फर्स्ट थिंग, एज आई सेड, वुड बी अक्नॉलेजमेंट. वो मैं इस पे भी बात करूँगी और यहाँ पे भी बात करूँगी. इन बोथ ऑफ दीज एरियाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ अक्नॉलेजमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप यू वुड सी. क्यों हम अक्नॉलेजमेंट की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको अक्नॉलेज करना पड़ेगा ना, आपको एक्सेप्ट. अक्नॉलेजमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट यू विल हैव दैट एक्सेप्टेंस. यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, एक्सेप्ट द प्रॉब्लम, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड द सोल्यूशन. अब ये एक्सेप्टेंस ऑफ द इशू, वाई इज़ इट सच एन इम्पॉर्टेंट स्टेप? क्योंकि जब तक आपको कॉज नहीं पता है तो उसका आंसर कैसे ढूंढोगे. एंड बट वाई इज़ इट सो प्रॉब्लमेटिक ऑल्सो? वाई आर पीपल नॉट एबल टू डू दिस? फर्स्टली, किससे एक बहुत ही बड़ा टैबू अटैच्ड हो जाता है. ठीक है, इट बिकम्स वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर पीपल टू टॉक अबाउट इट. बट डू वी फील अनकम्फर्टेबल when we tell somebody that I'm not well, I'm suffering from fever or cough or cold or headache or body ache, or let's say any kind of disease also, let's say somebody is having. Do you feel uncomfortable talking about it? No. वो तो हमें शायद होता इतना होगा, हम बताते इतना होंगे एग्जैजरेट करके. Most of the people do that. तब तो हमें बड़ी सिंपैथी लेनी होती है, तब तो वी आर लाइक वी वुड वांट पीपल टू बी वेरी काइंड एंड कंपैशनेट टुवर्ड्स अस. बट एक्चुअल चैलेंज तो यहाँ आता है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ की चीज़ें तो दिखती हैं बाहर से. आई मीन, चलो, इन मोस्ट ऑफ द केसेस देयर आर सम इंटरनल एलिमेंट्स ऑल्सो, बट ठीक है, उस पर हम बात तो कर ही लेते हैं ना. एटलीस्ट हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम दवाइयाँ लेते हैं, हम टेस्ट्स कराते हैं, हम इम्प्रूव करते हैं, हम डाइट पे काम करते हैं, हम एक्सरसाइज पे काम करते हैं, हम स्लीप साइकिल सही करते हैं. वी ट्राई एंड मेक एफर्ट्स टुवर्ड्स managing our physical health. And what about this? Something that nobody from outside can just get to know, क्योंकि ये तो हमारे अंदर चल रहा होता है, हमारे दिमाग में चल रहा होता है, और हम इससे अकेले जूझ रहे होते हैं.
तो द फर्स्ट स्टेप इज़ अबाउट, आप इसको तभी समझ पाओगे इफ़ इट इज़ इम्पैक्टिंग यू बैडली और नॉट, जब आप ये समझोगे कि यू हैव एक्सेप्टेड इट और एक्नॉलेज्ड इट. ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा. अगर आपने ये स्टेप कर लिया तो सबसे पहले तो यू विल स्टार्ट बिकमिंग, स्टार्ट फीलिंग मोर कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट. दैट वुड बी द फर्स्ट थिंग. एंड आई रिस्पेक्ट एवरीबडी हु हैज़ रीच्ड आउट टू मी वाया एनी प्लेटफॉर्म. ईमेल हो, मैसेज हो, कमेंट हो, कहीं से भी लोगों ने जब मुझसे बात करने की कोशिश करी है ऑन दिस टॉपिक, टेलिंग दैट येस मैम, और मेरे पर्सनल रिलेशंस में भी कि हाँ दीदी, या फिर जो मेरे फ्रेंड्स हैं, हाँ अर्पिता, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है. आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट एंड आई एम ब्लेस्ड ऑनेस्टली इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट पीपल हैव ट्रस्टेड मी. स्पेशली अगर मैं पर्सनल कॉन्टैक्ट्स की बात करूँ, people have opened to me about a lot of things that they have been through, a lot, which means very personal stuffs, but they have talked to me about it and they say that we feel comfortable talking to you, we trust you on this, and I have gained this trust. How? Because first I started to telling about them, about myself to them. ठीक है, हर डिटेल हर को बताना नहीं ज़रूरी होता है, बट इवन एक्नॉलेजिंग इट. राइट नाउ व्हाट आई एम ऑल्सो डूइंग इज एक्नॉलेजिंग, एक्सेप्टिंग that yes, it is the case, and let us accept that I have been a sufferer. You will also have to accept if you want to really solve it out. So the first thing is acceptance, and then when you accept it, you will understand that you already know the problem, and if you know the problem, half of the battle is already won. Because most people who are not able to identify the problem, actually they are in a more vulnerable state, but somebody who understands the problem, उनके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं. ठीक है. वंस यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, अब हमें क्या देखना है, सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है. तो सोल्यूशन हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप शुड बी अगेन टू ट्राई एंड टेक द हेल्प ऑफ योर ओन सेल्फ. सेल्फ हेल्प, ये आ गए हम इस पॉइंट पे दैट नाउ व्हाट कैन बी डन अबाउट इट. हाउ डू वी अंडरस्टैंड अबाउट इट? बाई एक्सेप्टिंग एंड एक्नॉलेजिंग. एंड ऑफकोर्स यू विल स्टार्ट फीलिंग, लेट्स से अगर हम इसको थोड़ा एक्सटर्नल लेवल पे बात करें, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग सिम्टम्स. ठीक है, आपको एग्जाइटी रहेगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपका मूड स्विंग्स होता रहेगा, आपको रोने का मन करेगा, यू विल फील स्टार्ट डिप्रेसिंग. बट डिप्रेशन को ना इतना लाइटली नहीं ले लेना होता है. मतलब दैट वर्ड हैज़ अ वेरी डीपर मीनिंग, एंड आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट टू टॉक मोर अबाउट इट. लेकिन जितना मैंने समझा है, लोगों से बात करी है, खुद की चीज़ें देखी समझी हैं, ऑन दैट बेसिस आई एम टेलिंग. उसको ना थोड़ा भी अगर मूड ख़राब हो रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, तो डोंट जस्ट रिप्लेस दैट थिंग विथ योर विद दिस टर्म डिप्रेशन. ठीक है, इट हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग, बहुत ही डीप रूटेड वर्ड है. और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसको आंसर करने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, from your side also and from the professional end also, and then at times people get very vulnerable about it. तो जो एक्चुअली में सीरियस सीवियर डिप्रेशन से जूझ रहे होंगे, ये उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा अगर हम उसको, हमारा थोड़ा भी मूड स्विंग और हम उसको डिप्रेशन का नाम दे दें. तो ट्राई एंड चूज़ दीज वर्ड्स वेरी केयरफुली, एंड नॉट जस्ट कि हाँ मेरे साथ हल्का फुल्का भी कुछ हो रहा है तो बस थोड़ा अटेंशन सीक करने के लिए इस वर्ड को यूज़ कर लेना है. डो नॉट बी एन अटेंशन सीकर इन दिस कॉन्टेक्स्ट, प्लीज़ डो नॉट, बिकॉज यू हैव नो आइडिया हाउ मेनी लाइव्स आर गोइंग. कितने लोगों को हम खो देते हैं only because of these things, that people are not able to talk about it, because when they talk about it, nobody takes them seriously, nobody understands it. So if you are really not a sufferer, इसके बारे में आपको गलत तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो अब जब हमने समझ लिया, अब हम कैसे इस पर डील कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. तो नाउ दैट यू हैव एक्नॉलेज एंड एक्सेप्टेड दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, समथिंग वियर्ड, समथिंग डिस्टर्बिंग गोइंग ऑन. ठीक है, ड्यूरिंग द होल प्रिपरेशन प्रोसेस, क्योंकि जर्नी इतनी लंबी होती है, हमें कट ऑफ रहना पड़ता है लोगों से एट टाइम्स. ठीक है, फ्रेंड्स से तो रहना ही पड़ता है ज़्यादातर. बहुत कम लोगों के कुछ अच्छे फ्रेंड्स होते होंगे जिनसे आप थोड़ा रेगुलर बेसिस पे टच में रह के अच्छे से बात कर पाते हो. फैमिली से आप टच में रहते होगे, बट ऑफकोर्स नॉट टू दैट एक्सटेंट विच यू कुड हैव डन अदरवाइज इफ़ यू हैड नॉट बीन इन टू द प्रेपरेशन. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है. फिनेंशियली आप एट टाइम्स किसी पर डिपेंडेंट होते हो, इमोशनली उस टाइम पे आप वल्नरेबल होने लग जाते हो. आपको लगता है काश आपको कहीं से कोई सहारा मिल जाता. यू स्टार्ट फीलिंग सो वल्नरेबल, यू नो, आपको सहारे की ज़रूरत पड़ने लगती है. आप खुद को बेचारा बेचारी टाइप्स देखने लगते हो. यू वॉन्ट दैट पिटी, यू विल नॉट एक्सेप्ट इट बट यू वुड वॉन्ट. तो ऐसा सा जब सिचुएशन होता है ना, जब कुछ नहीं समझ आ रहा होता, इतना वल्नरेबल स्टेट लगने लगता है. उसको सॉर्ट करने के लिए जब आपने खुद में उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, सो द फर्स्ट स्टेट और द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम. ठीक है, अभी मैं इस पर थोड़ा और डिटेल में बात करूँगी बाय शोइंग यू दिस एग्जाम्पल. यहाँ मैंने एक वॉइस नोट भेजा था इन रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन दैट वन ऑफ माई जूनियर्स हैड आस्क्ड मी. तो आई विल टेल यू कि मैंने उनको क्या रिस्पॉन्स करा. बट
अभी के लिए अगर हम इस पे बात करते हैं, तो जब हम इस टॉपिक को डील करना स्टार्ट करते हैं, इस पे बात करना शुरू करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हम धीरे धीरे कंफर्ट जोन में आना शुरू कर रहे हैं. वाई? बिकॉज वी आर फेसिंग समथिंग विच वी वॉन्टेड टू स्केप फ्रॉम. तो इसमें ना सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको हैंडल करने के लिए आपको स्केप तो नहीं करना है, आपको फेस करना है, हेड ऑन फेस करना है. इसमें कोई ख़राब चीज़ नहीं है, कुछ पाप नहीं हो गया है किसी से, कुछ गलती नहीं हो गई है, लेट अस एक्सेप्ट इट. और किसी से गलती से अगर गलती कोई हो भी गई है तो भी एक्सेप्ट इट. गलती मानना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि मानोगे नहीं तो सोल्यूशन कहाँ से लाओगे. ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे. कोई इस बारे में बात करता है तो येस, यू विल फेस इट हेड ऑन एंड यू विल आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम कि किस चीज़ से आपका इशू ट्रिगर हो रहा है. जब वो प्रॉब्लम निकलेगा उसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि सल्यूशन के लिए सेल्फ हेल्प सफिशिएंट है. क्या खुद को मोटिवेट कर पाना, क्या खुद को डिसिप्लिन में रखना, क्या खुद के लिए टाइम निकालना, खुद को अच्छा फील कराना, खुद को पैम्पर करना. अगर ये छोटी छोटे चीज़ें अगर आपको हेल्प कर जाती हैं, ऑफकोर्स फूड एंड डाइट एंड एक्सरसाइज एंड स्लीपिंग एंड एवरीथिंग मतलब कम्स अंडर दैट. बट वो सब तो सबको पता होता है. मैं उन टॉपिक्स पे बात करना चाह रही हूँ जिस पे आप नहीं कंफर्टेबल होते हो बात करने के लिए. तो अगर आपको लगता है कि सेल्फ हेल्प से आपकी चीज़ें मैनेज हो जा रही हैं तब तो ठीक है, नहीं तो गो फॉर अ प्रोफेशनल हेल्प. अगेन आई कम टू दिस पॉइंट इन सम टाइम. ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे तभी तो पता लगेगा कि सल्यूशन के लिए किस लेवल पे जाना है हमें. अब हम बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन लोनलीनेस एंड बीइंग अलोन, क्योंकि प्रिपरेशन में सबसे बड़ा कीवर्ड यही आ जाता है. तो देयर इज़ अ great difference, a huge difference between these two terms, whether you are lonely or you are just alone. ठीक है, आप अकेले रह रहे हो और आप प्रिपेयर कर रहे हो क्योंकि अकेले रहना ज़रूरी है आपके फोकस के लिए, विच इज़ ओके. बट आर यू लोनली? नहीं, यू कैन बी अलोन एंड स्टिल नॉट बी लोनली. अलोन मतलब हम अकेले रह रहे हैं, लोनली मतलब हम 10 के बीच होते हुए भी, इवन इफ वी आर सराउंडेड बाई 10 पीपल, वी स्टिल फील लोनली. वाई? बिकॉज वी डू नॉट फील दैट कम्फर्ट जोन विद दैम. तो ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना, आर यू लोनली और यू आर जस्ट अलोन. इफ़ यू आर अलोन, एक्चुअली ये बहुत अच्छा होता है प्रोडक्टिविटी के लिए भी. इट्स नॉट ऑलवेज एडवाइजेबल टू बी अलोन, बट एटलीस्ट ड्यूरिंग द प्रेपरेशन फेज यू शुड फोकस ऑन. तो आप परिवार के साथ रहिए, कुछ सिलेक्टिव दोस्त हैं उनके साथ रहिए, ज़्यादा सर्कल नहीं बनाना है, थोड़ा सा सोशल वर्ल्ड को कट ऑफ किया जा सकता है. ठीक है, लेकिन लोनली आप 10 के बीच में भी हो सकते हो. तो फाइट जो करना है वो एक्चुअली इससे करना है. वी हैव टू फाइट दिस डेमन, लोनलीनेस. ठीक है, हाउ डू यू ओवरकम दिस इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दिस? बहुत सी चीज़ें होती हैं. एक तो पढ़ाई आपका ऑलरेडी बहुत सारा टाइम ले लेता है, तो टाइम बचता नहीं है बहुत ज़्यादा. बट द बेस्ट पार्ट इज़ टू कीप योर सेल्फ engaged in what? Engaged in anything that makes you feel better. Be it any exercise, be it walking, jogging, running, sports, painting, dance, music, writing, anything, any मतलब any, that can be like a wider area. उसका horizon बहुत बड़ा होता है. तो आप जब उसमें engage हो जाओगे तो आप 10 के बीच बैठे हो या अकेले बैठे हो से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. You will not feel lonely about it. ठीक है, तो इस पार्ट को पहले एड्रेस करो. अगेन दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम दिस, ये इसका रूट है. ये समझोगे तभी यही समझोगे और तभी सोल्यूशन पे पहुंचोगे. तो पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना एंड टू सी हाउ थिंग्स आर गोइंग थ्रू, उसके बाद ही आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो. देन इफ़ वी मूव अहेड, अब अगर यहाँ से हमने समझ लिया कि सेल्फ हेल्प इज़ नॉट द सोल्यूशन, एंड लेट्स से फ्रेंड से बात करके या फैमिली से बात करके भी बहुत सोल्यूशन अगर नहीं मिल पा रहा है, अगर हम बेहतर तब भी नहीं फील कर पा रहे हैं, देन वी माइट स्विच ओवर टू द प्रोफेशनल हेल्प, विच इज़ एक्चुअली अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन पीपल वुड नॉट टॉक अबाउट इट. उनको लगता है कि अगर हम ऐसा कुछ बात करेंगे तो लोग हमें पागल बुलाएंगे. ऐसा नहीं होता. दिस इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग वे ऑफ डीलिंग एंड टॉकिंग अबाउट इट. दिस इज़ एक्चुअली वेरी इनह्यूमेन एंड वेरी वेरी, आई वुड से, ह्यूमिलिएटिंग. If somebody tells you this, just argue with them and डांट दो, सुना दो बिल्कुल. This is not a way to deal human. ठीक है, you cannot make the other person feel that vulnerable. आप किसी को ऐसे without dignity treat नहीं कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो वहाँ पे एक चीज़ है जिस पे ध्यान देनी है. And if you feel the need, तो आपको समझना है कि नीड है ये, तब आपको ये लेना पड़ रहा है. जैसे आप बाकी डॉक्टर्स के पास जाके हेल्प लेते हो, ठीक है, टैबू की तरह नहीं ले लेना है कि एक ठप्पा लग जाएगा या कुछ हो जाएगा. कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है. ठीक है, यू जस्ट फील अनकम्फर्टेबल एंड यू जस्ट हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. दैट इज़ इट. किसी का बहुत ही सीवियर स्टेज हो जाता है, किसी का स्टार्टिंग स्टेज होता है. दैट इज़ द ओनली डिफरेंस.
तो आप जब प्रोफेशनल हेल्प लेना स्टार्ट करोगे तो यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑप्शंस जहाँ पे, अच्छा अब इसमें देखो दो चीज़ें होती हैं, साइकियाट्रिस्ट का हो गया या साइकोलॉजिस्ट का हो गया। तो हमें स्टार्टिंग में जैसे किसी को नहीं पता होता है, ठीक है, कि यू नीड अ साइकियाट्रिस्ट हेल्प और साइकोलॉजिस्ट। साइकियाट्रिस्ट आपको दवाई वगैरह भी देंगे, बट साइकोलॉजिस्ट विल मोस्टली गो विद दी सेशंस, थेरेपी, टॉकिंग एंड चेकिंग ऑन कि आपका प्रोग्रेस कैसा रह रहा है। तो आपको जब लगने लगे तो आप जहाँ पर भी हैं, एंड ट्राई एंड गो फॉर ऑफलाइन, मतलब फेस टू फेस बात करने के लिए, ताकि वो ऑनलाइन वाली चीज़ में वो कंफर्ट जोन नहीं आता, वो सोल्यूशन इतना ईजिली नहीं मिल पाता है। तो आप जब जाएंगे तो आपको जो भी प्रोफेशनल होंगे, साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट, वो खुद बता देंगे कि यू विल नीड अ साइकोलॉजिस्ट हेल्प और अ साइकियाट्रिस्ट हेल्प। तो लीव देम टू देयर डिस्क्रिशन, एंड क्योंकि उन्होंने पढ़ाई करी है इस चीज़ की, दे आर वेल वर्स्ड विद दिस, दे विल अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो इसको ज़रूरत है, इसीलिए एड्रेस करना है इसको, ये सोच के कि कौन क्या सोचेगा या बोलेगा अपने अंदर तक रख के उसमें घुटना नहीं है। घुटोगे ख़त्म हो जाओगे, ख़त्म तो वैसे भी देखो एक दिन सब होंगे, ठीक है, लेकिन इस रीज़न से ख़त्म होना कहाँ समझदारी है। लेट द नेचर टेक योर लाइफ अवे लाइक द नेचर गेव यू लाइफ, एंड डू नॉट डू दिस टू योर सेल्फ, डू नॉट डू रॉन्ग टू योर सेल्फ। हम हमेशा ये ज़्यादा सोचने में फोकस कर देते हैं कि हमें दूसरों के साथ गलत नहीं करना है या दूसरे हमारे साथ गलत नहीं करें। वी एक्चुअली स्टॉप फोकसिंग ऑन द पॉइंट कि हमें पहले खुद के साथ गलत नहीं करना है, एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। एंड हाउ डू यू एड्रेस इट आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दीज पॉइंटर्स इन डिटेल। इस चीज़ को सोचो, मैं इसको बहुत बड़ा वीडियो जानकर नहीं बना रही हूँ, नहीं तो उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है, लोगों को फिर उतना सुनने का पेशेंस किसी में नहीं होता, और वो समझना ही नहीं चाहते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। चाहते तो हैं हेल्प, बट करना कुछ नहीं चाहते हैं। सो यू वॉन्ट द सोल्यूशन बट नो एफर्ट्स, दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। So I am trying to keeping it short so that you will focus on each of these points yourself and deal with this the way that suits your situation, because it varies from person to person. ठीक है, अब quickly I will show this. तो one of my junior messaged me a couple of days ago, ये screenshot कुछ दिनों पहले किए। अब वहाँ उन्होंने बोला कि हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, एंड आई वॉज डूइंग दिस। ठीक है, और वो दिस में क्या था कि उन्होंने कुछ पता नहीं अभी कहाँ से चेक करा, आई नेवर आस्क्ड अबाउट इट। ठीक है, कहीं से ये स्ट्रेस एंग्जाइटी लेवल को चेक करने लगा और निकल के आया कि बहुत ही सीवियर कंडीशन है। ठीक है, एंड आई एम ग्लैड कि जो मैंने ऑडियो शेयर करी वो उनके लिए हेल्पफुल भी था। और इस ऑडियो में मैंने क्या बताया, सो द रीज़न ऑफ शेयरिंग दिस विथ यू विदाउट रिवीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन इज़ कि बाहर से लोग आप में से ये चीज़ें फेस कर रहे होंगे। एंड अगेन मैंने फर्स्ट चीज़ उस ऑडियो में भी बोली दैट लिसन, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, है ना, मैं तो सिर्फ हेल्प करने के इंटेंशन से कर सकती हूँ, मेरे को पता तो है नहीं इसके बारे में डिटेल में चीज़ें। तो फर्स्टली आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, तो मैं उस पर एडवाइस नहीं दे सकती, बट वॉट आई कैन डू दिस कि जो मुझे समझ आता है अपने एक्सपीरियंस से, लोगों से बातें करके, उसके बेसिस पे सीइंग दैट आपकी जो सिचुएशन है उसमें क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनको बोला कि फर्स्ट यू शुड आइडेंटिफाई, जो मैंने आपको भी अभी बोला, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई इस चीज़ से करो कि क्या ये सिर्फ बीच बीच में होता है, डज इट अकर आफ्टर लेट्स से थोड़ा गैप पे, और इट इज़ अ वेरी फ्रीक्वेंट अकरेंस विथ यू। इफ़ इट अकर्स बीच बीच में, देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द कॉज बिहाइंड इट, कि जो ट्रिगर फैक्टर होता है, what is a trigger factor which impacts your mood and then you start feeling stressful or anxious. तो उस केस में जो भी पर्टिकुलर ट्रिगर फैक्टर होगा हम उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये बहुत फ्रीक्वेंट अकरेंस है देन तो विदाउट एनी सेकेंड थॉट हमें प्रोफेशनल हेल्प पे सीधे चले जाना चाहिए। यही मैंने उनको भी बोला कि आपको पहले तो आप आइडेंटिफाई करो अपने इश्यूज़, अपने मूड स्विंग का पैटर्न एंड एवरीथिंग। इफ़ यू थिंक दैट कैन बी सॉल्वेबल तो ठीक है, और उस केस में अगर आपको लगता है कि यू हैव सम क्लोज फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स टू टॉक टू, और एनीबडी हु कैन लिसन टू यू, हु कैन मेक यू फील कंफर्टेबल। क्योंकि आजकल के देखो टाइम में क्या है ना कि किसी के पास भी इतना वक्त नहीं होता कि कोई आपको वक्त दे। आजकल पैसा से ज़्यादा, ऑफकोर्स पहले भी था बट अब और है, वक्त ज़्यादा कीमती है। तो नोबडी कैन गिव यू, और ये सारी चीज़ें 5-10 मिनट के कॉन्वर्सेशन में होती भी नहीं हैं। इट टेक्स आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स टू एक्चुअली गेट द सोल्यूशन, बट नॉट एवरीबडी कैन डू दैट। एंड हमें भी समझना पड़ेगा कि भाई नहीं है इतना टाइम किसी के, हमारे खुद के घर के लोगों के पास क्या होता है इतना वक्त, या हमारे ही पास होता है कि दूसरों को देने के लिए। तो टू एक्सपेक्ट दैट इन रिटर्न इज़ वेरी मतलब आई वुड से थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है हमारे पार्ट पे भी। तो हमें वहाँ भी चीज़ें समझनी है। तो इफ़ वी हैव समबडी टू लिसन टू एंड हेल्प विथ, वी आर एक्चुअली ब्लेस्ड।
and we should be very grateful towards the person. But if we do not have, go for the professional help. क्योंकि अगर खुद को ठीक करना है, that is the only solution that you will have to take for yourself, or the step that you will have to take for yourself. अगर खुद को ठीक करना है तो अपने लिए ये steps लेने पड़ेंगे. So I hope I have tried to make myself clear with the whole idea of कि इस journey में जो ये difficulty आती है, इसको हम step by step, और this is not a overnight process, this is a gradual process. And honestly ये preparation तो चलो मैंने अभी use कर लिया, but this goes for in general also life में, without preparation also ये same ही चीज़ apply होती है. So if this video was helpful, I would be welcoming your feedback. If you would want me to make more videos on the issues थोड़ा और डिटेल में, लाइक एक इशू को डिटेल में डिस्कस करना, तो मैं कर सकती हूँ वो आपके लिए, ठीक है. बट फॉर द टाइम बिंग आई होप आई हैव मेड सेंस विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंटर्स. नाउ आई विल बी कमिंग अप विद द अदर सेट ऑफ टॉपिक्स ऑल्सो. ये जो पूरी लिस्ट है इसको एक एक करके ख़त्म करना है. सो आई विल क्विकली मेक वीडियोज़ ऑन देम एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर टिल देन. बाय बाय.